Yes, good morning students. Our topic is the Nazi worldview, Nazi का दृष्टिकोण. So the crimes that Nazis did were based on a system of belief and a set of practice. नाजियों ने जो भी अपराध किए वो एक विश्वास एक व्यवहार पर एक कुछ मूल्य मान्यताओं पर और व्यवहार पर आधारित थे. Nazis ideology was similar to Hitler's worldview और सिनोनिमस. नाजिस आइडियोलॉजी जो है वो हिटलर का वर्ल्ड व्यू है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल. लोगों के बीच में कोई समानता नहीं है, ओनली रेशियल हायरार्की. एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ब्लड ब्लू आइट नॉर्दिक जर्मन आर्यन they are at the top and the Jews are at the lowest level. Jews are at the lowest level and they are Jews are the arch enemies of the Aryans, and the other all colored people are placed between these two. Hitler's got the ideas from the thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. Charles Darwin was a scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural science. And later Herbert Spencer gave the idea of survival the fittest, कि जो fittest है वो ही survive करेगा. According to this, the species which would be strong would survive and the weak one would perish. And some thinkers and politicians tried to justify their imperial rule over conquered people. But Darwin never said about the intervention of human. Darwin never said about the human intervention. So, Nazis' argument was simple that only the strongest race would survive and the weak one would perish. And the Nordic Aryans is the finest. Nordic German Aryans is the finest. And it has to retain its purity, become stronger and dominate the world. और इसी को वर्ल्ड पे स्वामित्व करना है. Then concept of Lebensraum or living space. Hitler's ideologies, another aspect was the concept of Lebensraum or living space. Hitler wanted to extend its empire to give living space to the Germans. जर्मन लोगों को वो रहने के लिए स्थान देने के लिए वो अपने एम्पायर को अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहता था. So that would enhance the area of the motherland. अगर वो ऐसा करता है तो उससे जो जर्मन है जर्मनी की जो भूमि भी बढ़ जाएगी और वो लोग जो दूसरे देशों में रहेंगे वो अपने ओरिजिन से जुड़े रहेंगे, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहेंगे. इससे उनके संसाधन भी बढ़ जाएंगे और जर्मनी जो है वो पावरफुल हो जाएगा. सो वंस इन पावर, एक बार सत्ता में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, एक बार सत्ता में आने के बाद नाजिस बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएशन द रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योरली जर्मन्स. प्योरली जो शुद्ध जर्मन की जो समुदाय था उसकी रचना करने का काम उन्होंने अपना सपना पूरा करना शुरू कर दिया. एंड दे वर कंसीडर्ड डिजायरेबल. The Nazis wanted a society of pure and healthy Nordic German Aryan, and they were considered desirable. Others were undesirable. Even the Poles. And it means that those Germans who were
who were abnormal, they did not have the right to live. मतलब वो ही सोचते थे कि वो जर्मन लोग भी जो कि abnormal है, उनको भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है. And according to this euthanasia program, under the euthanasia program, Helmut's father and the other Nazis officials, they condemned many Germans to death because they were considered physically and mentally unfit. मतलब जो जर्मन के लोग भी जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं थे, उनको बड़ी मात्रा में मार दिया गया. Then Jews were not the only community as undesirable. Jews ही एक ऐसा समुदाय नहीं था जिसको undesirable समझा जाता था. Many of the gypsies or the blacks living in Nazi Germany, they were also considered inferior. बहुत सारे जो जिप्सीज थे या नाजी जर्मनी में जो ब्लैक्स रहते थे, उनको भी इंफीरियर समझा गया. And even the Poles and Russians, they were also called subhuman. They were also Poles and the Russians, they were also called subhumans. And they were widely persecuted. When Germany occupied Poland and parts of Russia, many civilians were captured. And then they were forced to work as slave. जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, तो बहुत से जो सिविलियंस थे उनको कब्जे में ले लिया और उनको बंदी बना लिया और फिर उनको दास बना लिया. और इस तरह से many people were died due to starvation. बहुत से लोग जो थे they died due to starvation and hard work. भूखमरी और मेहनत से मर गए. So Jews remained the worst sufferers in the नाजी जर्मनी. नाजी जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति थी वो जूस की थी. They were the worst sufferers in Nazi Germany. So Nazi they had been stereotyped as killers. और usurers, killers of Christ. मतलब उनको क्राइस्ट का किलर्स कहा जाता था या उनको सूदखोर कहा जाता था, जो मनी लेंडर्स कहा जाता था. मतलब they were barred from having owning the land. वो भूमि नहीं रख सकते थे. They earned their living through money lending and trade. मनी लैंडिंग और ट्रेड से वो पैसे कमाते थे. They had to live in a marked area called ghettos. उन्हें ghettos में रहना होता था. और they were persecuted there. वहां पे उनको बड़ी मात्रा में through organized violence, संगठित हिंसा के द्वारा उनको मार दिया जाता था, Jews को. So उनको देश से निकाल दिया जाता था. Hitler's hatred of Jews was based on pseudo scientific theories of race. हिटलर की जो यहूदियों के लिए घृणा थी, it was based on pseudo scientific theories of race पे आधारित थी, which held that conversion was not the solution of Jewish problem. कि मतलब अगर जूस अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो ये उनका कोई सोल्यूशन नहीं है. जो यहूदी हैं उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए. मॉडर्न पीरियड में जू जो थे वो काफी जो थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था. उनके पास एक रास्ता था और वो धर्म परिवर्तन कर लिया था. और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जर्मन स्टाइल अपना लिया था. लेकिन हिटलर का कहना था कि ये भी एक कोई तरीका नहीं है, जूइश प्रॉब्लम का ये कोई हल नहीं है. एंड द ओनली सॉल्यूशन टू जूइश प्रॉब्लम इज टोटल एलिमिनेशन, कि इनका बिल्कुल सफाया कर दिया जाए. फ्रॉम 1933 to 1938 द नाजीज टेरराइज्ड
pauperized and segregated the Jews. 1933 से 1938 में जो नाजीज थे उन्होंने ज्यूज को आतंकित किया, उनको उनके जो है उनके आजीविका के साधन छीनकर उनको गरीब बना दिया और उनको बिल्कुल समाज से अलग थलग कर दिया। फिर 1939 से 1945 तक उनको कुछ विशेष क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद उनको पोलैंड के अंदर जो गैस चैम्बर्स थे वहां पे ले जाके बड़ी मात्रा में मारा जाने लगा। देन द रेशियल यूथोपिया, under the shadow of the war, Nazis proceed to realize their racial ideal. युद्ध के दौरान भी नाजियों ने अपना ये जारी रखा, मतलब वो जो अपना सपना था वो जारी रखना चाहते थे कि सिर्फ एक नॉर्दिक जो जर्मन आर्य है वो ही जो है सरवाइव करने चाहिए। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए, युद्ध और नरसंहार। सो ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, जिस पोलैंड पे कब्जा किया था उसको बांट दिया गया, उसको कुचल दिया गया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द पोलैंड वाज अनेक्स्ड विद जर्मनी। इसका पोलैंड का जो उत्तर पश्चिमी भाग था उसको जर्मनी में मिला दिया गया और पोलैंड के लोगों को अपना हाउस और प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि वो वहां पे जर्मन लोगों को बसा सके और उनको जनरल गवर्नमेंट, एक दूसरा स्थान था वहां पे जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, जनरल गवर्नमेंट। सो मतलब वहां पे वो क्या था कि वहां पे जो अनडिजायरेबल लोग थे, साम्राज्य के जो भी अनडिजायरेबल थे उनको वहां पे जो था केंद्रित कर दिया गया था, उनको वहां पे रहना था, सब अनडिजायरेबल को। पोलिश जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत से जो पोलिश बुद्धिजीवी थे उनको बड़ी मात्रा में मार दिया गया ताकि वो एक ऐसे पोलिश समाज की स्थापना कर सकें जो उनका गुलाम बन जाए, एक ऐसा समाज बना सके जो जर्मन लोगों का गुलाम बन जाए। पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यन से मिलते जुलते थे, पोलैंड वासियों के जो बच्चे जो आर्यन से मिलते जुलते थे उन्हें उनकी मदर से छीन लिया गया और फिर एक रेसिस एक्सपर्ट के द्वारा उनके टेस्ट कराए गए और जो बच्चे टेस्ट में पास हो जाते थे उनको जर्मन फैमिलीज में रहने की परमिशन दी जाती थी और जो बच्चे टेस्ट में फेल हो जाते थे उस रेशियल टेस्ट में उनको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था और वहां पे बड़ी संख्या में वो बच्चे मर जाते थे। तो इस तरह से ये जो जनरल गवर्नमेंट था इसके अंदर घेटोस थे, बड़े बड़े घेटोस थे और गैस चैम्बर्स थे जिसमें ज्यूस को बड़ी मात्रा में मारा गया। जो जनरल गवर्नमेंट जगह थी वहां पे बड़े बड़े घेटोस थे और गैस चैम्बर्स थे, वहां पे ज्यूस को बड़ी मात्रा में मारा जाने लगा। सो योर टॉपिक एंड्स हियर। The next topic we will do in the next lesson. Children, you should write your question answer. आपने अभी तक लेसन 2 के जो क्वेश्चन आंसर है मुझे नहीं सेंड किए हैं, प्लीज उनको लिखिए और भेजिए क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर भी मैं लिखवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।